Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mrs. Rizwana Zia. I welcome you in the online classes of Divisional Public School and Inter-College Sahiwal. You know that we are studying chapter number 3, that is about matrices and determinants. Today we'll solve question 12 to 17 of exercise 3.3. In previous lecture, we discussed and applied properties of determinants to solve given questions. We also evaluated determinants of matrix of order 3. Today we learn about adjoint and inverse of a square matrix of order n greater than equal to 3. Now let us start question number 12 of exercise 3.3. Question number 12. Which of the following matrices are singular and which of them are non-singular? Before starting the question, let us revise definition of singular and non-singular matrix. Singular matrix. A square matrix A is singular if determinant of A is equal to 0. Non-singular matrix. A square matrix A is non-singular if determinant of A is not equal to 0. Students, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो तो हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ वी सी द सॉल्यूशन. वी सपोज दैट A is equal to this given matrix 1 0 3 3 1 minus 1 0 2 4. We take its determinant. Determinant of A is equal to determinant of 1 0 3 3 1 minus 1 0 2 4. Now we evaluate this determinant by using R1. Determinant of A is equal to 1 into determinant of 1 minus 1 2 4 minus 0 into determinant 3 minus 1 0 4 plus 3 into determinant of 3 1 0 2. और स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. वी गेट 1 into 4 plus 2 minus 0 and 3 into 3 2s are 6 minus 0. And it becomes 6 plus 18 is equal to 24. Now students, since determinant of A is not equal to 0, therefore matrix A is non-singular. Next we see question number 13. Find inverse of A where A is matrix 2 1 0 1 1 0 2 minus 3 5 and show that A inverse into A is equal to I3. Now we see the solution. Students, we know that A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint A. This is formula for the calculation of A inverse. So first we find determinant of A. स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसलिए भी पहले कैलकुलेट करते हैं क्योंकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो ए इन्वर्स विल नॉट पॉसिबल, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो फिर हम ए इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहले हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. इसका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करते हैं एक्सपेंडिंग बाय C3. थर्ड कॉलम से मैंने इसे एक्सपेंड किया है क्योंकि थर्ड कॉलम की फर्स्ट 2 एंट्रीज 0 हैं, तो इसलिए हमारा काम आसान हो जाएगा. स्टूडेंट्स, हम 0 को इसके माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं. 0 की रो और 0 का कॉलम डिलीट कर दें और फिर जो डिटर्मिनेंट बचता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. और जब हम 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो सब की सब 0 हो जाती है, इसलिए हम सिंपल यहाँ पर 0 लिख देंगे. नेक्स्ट एंट्री भी 0 है तो हम सिंपली 0 लिख देंगे. नेक्स्ट एंट्री है +5 और 5 की रो और 5 के कॉलम को डिलीट कर दें और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा 2 1 1 1. 2 1 1 1 का डिटर्मिनेंट, और फर्दर इसे एक्सपेंड कर लेते हैं.
we get 5 into 2 ones are 2 minus 1 ones are 1. That is 5 into 1 is equal to 5. Since A is a non-singular matrix, so we can find its inverse. Now students, next is adjoint A. आपको पता है कि अगर A 2/2 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं. स्टूडेंट्स, मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को आपने इंटरचेंज कर देना है. दैट इज़ 2 6 को हमने 6 2 लिख देना है और अदर डायगोनल की एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे. सो ये है 5 -3. तो जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये होगा -5 3. दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स. अब हमारे पास तो मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का. इसके लिए हम देखते हैं हमें किस तरह से कैलकुलेट करना होगा. बच्चों, एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. नाउ वी फाइंड all the cofactors of matrix A. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्री 2 का कोफैक्टर लेंगे. कोफैक्टर लेने का मेथड आपको याद होगा. सबसे पहले हम कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जिस एंट्री का लेना हो वो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री का हम लेने लगे हैं कोफैक्टर, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 1 लिखा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस इज़ इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1. ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इन एंट्री इसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 + 1. और फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बचेगा हम वो लिख लेंगे 1 0 -3 5. एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 स्क्वेयर और 1 5s are 5 minus 0 3s are 0 and it becomes 1 into 5 is equal to 5. ये हमने फर्स्ट एंट्री का कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया. इसी तरह से हम सेकेंड एंट्री मीन्स 1, इस 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे. दैट इज़ A12. ये एंट्री है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की. तो इस 1 का कोफैक्टर हम लेते हैं. कोफैक्टर लेने का मेथड देखिएगा. -1 रेज टू पावर 1 + 2. 1 + 2 अभी मैंने पहले भी बताया आपको हम किस तरह लेंगे. ये स्क्रिप्ट जो हमने लिखे हुए हैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करके हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो लिखेंगे. दैट इज़ 1 0 2 5. 1 0 2 5. This is equal to -1 raised to power 3 into 5 minus 0 is equal to -1 into 5 is equal to -5. Similarly, थर्ड एंट्री का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे. थर्ड एंट्री है 0. 0 का कोफैक्टर देखिएगा. A13 is equal to -1 raised to power 1 + 3. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा दैट इज़ 1 1 2 -3 और इसे सॉल्व कर लें. -1 रेज टू पावर 4 इंटू 1 इंटू -3 इज़ -3 माइनस 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड इट बिकम्स 1 इंटू -5 दैट इज़ -5. ये तो फर्स्ट रो के हमने कोफैक्टर्स कंप्लीट कर लिए. अब हम सेकंड रो की हर एंट्री का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे. A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 1 एंड देन स्टूडेंट्स आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें और देखिए हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बचता है 1 0 -3 5. दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 5 इंटू 1 5s are 5 -3 0s are 0. So it is -1 into 5 is equal to -5. नेक्स्ट कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 2 और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करके
जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो है 2025. It becomes minus 1 raised to power 4 and 2 5 are 10 minus 0, that is 1 into 10 is equal to 10. Similarly, we calculate the remaining cofactors. ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट किए हुए हैं cofactors. Now we write all these cofactors in the form of a matrix. As we know that adjoint A is equal to transpose of matrix of कोफैक्टर्स. हम यहाँ पे तमाम कोफैक्टर्स जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं वो लिख लेते हैं. 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 10 8 0 0 1 और इसका ट्रांसपोज लेंगे. As you know that when we take transpose of a matrix, we interchange rows into columns or columns into rows. यहाँ से आप देखिए फर्स्ट रो लेंगे 5 माइनस 5 माइनस 5 और इसको फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे 5 माइनस 5 माइनस 5. सेकेंड रो की एंट्रीज को सेकेंड कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे और थर्ड रो की एंट्री को थर्ड कॉलम की एंट्रीज की फॉर्म में लिख देंगे. So we have obtained transpose of this matrix. Now students, since A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint A, substituting values of A, determinant of A and adjoint A, we get A inverse is equal to 1 over 5, that is determinant of A, into adjoint A. एडजॉइंट ए ये हमारे पास सामने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. और स्टूडेंट्स ये 1 over 5 को मैट्रिक्स की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. इट बिकम्स 1 माइनस 1 0 1 2 0 1 8 over 5 1 over 5. So we have obtained A inverse. Now we prove that A inverse into A is equal to I. A inverse into A is equal to product of these two matrices. इन दोनों की प्रोडक्ट लेते हैं. प्रोडक्ट लेने का मेथड भी हम बहुत दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं. फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 2 is 2. Minus 1 into 1 is 1 plus 0 into 2 is 0. सेकेंड रो की हर एंट्री को फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2. फिर थर्ड रो की हर एंट्री को फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. माइनस 1 इंटू 2 प्लस 8 over 5 इंटू 1 प्लस 1 over 5 इंटू 2. इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट की है. एंड नाउ सिंप्लीफाई द वैल्यूज. 2 minus 1 is 1. 1 minus 1 plus 0 is 0 and these are all zeros, तो आंसर भी 0 होगा. Minus 2 plus 2 is 0. Minus 1 plus 2 is 1. 0 and now minus 2 plus 8 over 5 plus 2 over 5. स्टूडेंट्स जब इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +2 एंड -2 + 2 विल बी 0. नेक्स्ट देखिए -1 + 8 over 5 -3 over 5. 8 over 5 -3 over 5 will give you 5 over 5, that is equal to 1. Minus 1 plus 1 is 0 and then 0 plus 0 plus 1 is 1. This is equal to identity matrix. So we have proved that A inverse into A is equal to identity. Now we see question number 14. Verify that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse, where matrices A, B are A is equal to 5 1 2 2 and B is equal to 4 3 2 1. These are two given matrices A and B. Now we see the solution. First we find AB.
प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। हम फर्स्ट रो की हर एंट्री को फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। इट बिकम्स 5 इंटू 420 प्लस 2 इंटू 1 2। फिर सेकेंड रो की हर एंट्री को फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4 इज़ 8 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4। नेक्स्ट फर्स्ट रो की हर एंट्री को सेकंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। इट बिकम्स 15 प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज 2 into 3 is 6 plus 2 into 1 is 2 and after simplification we obtain 22 16 12 8 का मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम ए बी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और उससे पहले हम इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। फर्स्ट वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, that is determinant of 22 16 12 8 and it becomes 176 minus 192 is equal to minus 16. Now students, since determinant of AB is not equal to 0, it means AB is a non-singular matrix and we can find inverse of AB. एडजॉइंट ए बी कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। मेन डायगनल के एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, दैट इज़ 22 और 8 को इंटरचेंज कर दिया और अदर डायगनल की एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। 16 और 12 की साइन चेंज करेंगे तो वी ऑब्टेन माइनस 16 एंड माइनस 12। दिस इज एडजॉइंट ए बी। एंड नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB whole inverse is equal to 1 over determinant of AB into adjoint of AB. This is equal to 1 over minus 16 and adjoint of AB is 8 minus 16 minus 12 22. Now we see its right hand side. Matrix A is equal to 5 1 2 2. Determinant of A is equal to 5 1 2 2 और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। 5 2 are 10 minus 2 is 8. Now we find adjoint of A, that is obtained by interchanging the entries of main diagonal and by changing the signs of entries of the other diagonal, that is minus 1 minus 2. This is adjoint A. Now we find A inverse. A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint A. Next, this is equal to 1 over 8 into 2 minus 1 minus 2 5 का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स A इन्वर्स आ गया। अब हम B इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स B is 4 3 2 1. Now we find determinant of B, that is determinant of B is equal to determinant of 4 3 2 1 and we get 4 1s are 4 minus 3 2s are 6. 4 minus 6 is minus 2. And now adjoint of B is obtained by interchanging the entries of main diagonal, that is 4 1 को हमने इंटरचेंज किया and it becomes 1 4 और अदर टू वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर दिए, माइनस 3 माइनस 2 आ गया। एंड नाउ B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट B एंड इट बिकम्स माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 4। स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना हो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। हमने देखा कि ए भी नॉन सिंगुलर है और बी भी नॉन सिंगुलर है, इसलिए हमने इनके इन्वर्सेस फाइंड आउट कर लिए। नाउ राइट हैंड साइड इज बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स एंड देखिए प्रोडक्ट इसकी 1 ओवर माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 4 इंटू 1 ओवर 8
2 माइनस 1 माइनस 2 5। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को। 1/-2 और 1/8 को स्टूडेंट्स हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे ताकि हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। And now it becomes 1 into 1 is 1 over minus 2 into 8 is minus 16। और फिर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 into 2 is 2 and minus 3 into minus 2 is plus 6 and next minus 2 into 2 is minus 4 and 4 into minus 2 is minus 8। Next 1 into minus 1 is minus 1, minus 3 into 5 is minus 15, minus 2 into minus 1 is 2 and plus 4 into 5 is 20। इसे सिंप्लीफाई कर लें। minus 1/16 8 minus 12 minus 16 22 and label it as equation 2। And now comparing equation 1 and 2 we get AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. So we have proved the result. Now students, this is question number 16. If A is equal to 2 minus 1 3 1 का matrix, then verify that transpose of A inverse is equal to inverse of A transpose। ये आइडेंटिटी हमने वेरीफाई करनी है। Let us see the solution. A is equal to matrix 2 minus 1 3 1 and we calculate its determinant. Determinant of A is equal to determinant of 2 minus 1 3 1 and it becomes 2 plus 3 is equal to 5. Since A is non-singular matrix, so A inverse can be calculated. Now adjoint A is obtained by interchanging the entries of main diagonal and by changing the signs of the entries of other diagonal. And A inverse becomes 1 over determinant of A into adjoint A, that is 1 over 5 into 1 1 minus 3 2। और स्टूडेंट्स ये 1 over 5 हम मैट्रिक्स के अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट बिकम्स 1 over 5 1 over 5 minus 3 over 5 2 over 5। Now we take left hand side of the result which is to be proved। Left hand side is equal to transpose of A inverse। We take transpose of A inverse, that is transpose of 1 over 5 1 over 5 minus 3 over 5 2 over 5। This is equal to G ट्रांसपोज लेने के लिए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे और फिर सेकंड रो लेंगे और उसको सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। सो वी हैव ऑब्टेन्ड ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स। लेबल इट एज इक्वेशन 1। Now students, we take A transpose is equal to transpose of 2 minus 1 3 1 और ट्रांसपोज obtain करेंगे by interchanging rows and columns। फर्स्ट रो ली 2 minus 1 और उसको फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड रो ली 3 1 और इसको सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 minus 1 1। नेक्स्ट A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 minus 1 1 दैट विल बी 2 1s are 2 minus into minus 1 into 3, so it becomes 2 plus 3 is equal to 5. This is determinant of A transpose. And now students, since A transpose is a non-singular matrix, so we can evaluate its inverse. Now adjoint of A transpose is obtained by interchanging the entries of diagonals of A transpose and by changing the signs of the values of other diagonal. And this is adjoint of A transpose. Now we take right hand side inverse of A transpose, that is
1 over determinant of A transpose into adjoint of A transpose. This is equal to 1 over 5, 1 minus 3, 1 2. ये हमने adjoint of A transpose कैलकुलेट किया हुआ है, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर 1 over 5 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई किया. वी obtain 1 over 5 minus 3 over 5, 1 over 5, 2 over 5. Label it as equation 2. Now comparing equation 1 and 2, we get transpose of A inverse is equal to inverse of A transpose. So we have proved the required result. Now we see question number 17. If A and B are non-singular matrices, then show that first part में students AB whole inverse is equal to B inverse A inverse, and second part में है inverse of A inverse is equal to A. फर्स्ट रिजल्ट तो स्टूडेंट्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई किया है इस रिजल्ट को मैट्रिसेस लेके, लेकिन अब हम इसको लॉजिकली प्रूव करेंगे, रीजंस के साथ वेरीफाई करेंगे. सॉल्यूशन. सिंस A and B are non-singular matrices, therefore A inverse and B inverse exist. Also given that A into A inverse is equal to identity is equal to A inverse into A, and B into B inverse is equal to I is equal to B inverse into B. स्टूडेंट्स ये हमें दो रिजल्ट्स गिवन हैं जो कि हम सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे. नाउ सिंस वी नो दैट AB into AB whole inverse is equal to identity, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल होती है. तो यहाँ पे मैट्रिक्स है AB और AB का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इन्वर्स, इस इक्वेशन को हमने प्री मल्टीप्लाई किया A इन्वर्स से एंड एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स. A इन्वर्स इंटू A पे हमने ब्रैकेट लिख ली और B को एज इट इज़ लिखा. देन AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू I. यहाँ पे देखिए हमने लिखा है A इन्वर्स इंटू I इज इक्वल टू A इन्वर्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आंसर में आ जाता है. और यहाँ पे देखिएगा A इन्वर्स इंटू A, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा. आइडेंटिटी इंटू B, आइडेंटिटी इंटू B इंटू AB इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स. नाउ स्टूडेंट्स आइडेंटिटी को भी अगेन आइडेंटिटी को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास B और AB इन्वर्स एज इट इज़ आ जाएगा और राइट हैंड साइड भी एज इट इज़ आ जाएगी. नाउ अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बाय B इन्वर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय B इन्वर्स वी ऑब्टेन B इन्वर्स इंटू B इंटू AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स. नाउ B इन्वर्स इंटू B इज आइडेंटिटी, ये हमें यहाँ पे गिवन है. So B inverse into B is equal to identity into AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. और स्टूडेंट्स जब I मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ तो ये AB whole inverse रह जाएगा. AB whole inverse is equal to B inverse A inverse, and hence we have proved the required result, that is AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. इन्वर्स ऑफ A inverse is equal to A. Let us see the solution. Since A is non-singular matrix, therefore A inverse exists. ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि A नॉन सिंगुलर है तो इसलिए हम A इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. Also A into A inverse is equal to I is equal to A inverse into A. Now we take the relation A inverse into inverse of A inverse.
A inverse into inverse of A inverse is equal to identity. Students, यहाँ पे हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है विच आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर. A inverse into inverse of A inverse. Now pre-multiplying by A, we get A into A inverse into inverse of A inverse is equal to A into identity. ये फर्स्ट प्रोडक्ट को देखिएगा, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, ये हमें गिवन है. सो वी राइट I इंटू इनवर्स ऑफ A इनवर्स एंड वी नो दैट A मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी इज इक्वल टू A एंड identity multiplied by inverse of A inverse is equal to inverse of A inverse is equal to A. So we have proved this second result. We have finished exercise 3.3. Now there is a home assignment, question number 12, second and third part, question number 14, first part, and question number 15. Students, I hope you have understood all the questions which we have done in the lecture. Please do practice of all these questions and also do home assignment. Thank you very much, students. Stay blessed. Allah Hafiz.